Hello everyone, welcome to the new lecture of Basics of Civil and Mechanical Engineering. And as you know that we are dealing with the part Basics of Civil Engineering. This is our fourth lecture actually. And in previous lecture, we have studied about the interdisciplinary approach in civil engineering and what is the role of civil engineering in infrastructure development. Today we will continue our topic and we will move on to the next thing, that is early construction and development over the time, ancient monuments and modern marvels. Okay, in previous lecture, these are the parts which we have already covered: the role of civil engineer, current budgets, broad disciplines, importance of civil engineering, possible scopes for career study. These are the things which we have studied earlier. Okay, so in today's lecture, we will discuss about the early construction and development over the time. It means that in Stone Age, what people used to do for living, how they constructed their home, how they constructed their houses, how they get shelters, and within the time, as the time the passes, what are the actual technologies which replaces the previous one? Okay, which replace the previous one. So we will see the development over the years. Okay, development over the centuries. So we will look at it in a very short way. We will not going in details, but over we'll just see the brief introduction of these topics. Okay, so let's start. So for today's lecture, these are the headlines which we will try to cover. First thing is the early construction, then development of construction over the years, development of various material of construction, then development of various method of construction. We will try to cover these topics. Okay, तो आज का जो टॉपिक है हम उसमें ये चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे. इसमें हम देखेंगे कि पहले के ज़माने में स्टोन एज के टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होता था वो किस तरीके से होता था, लोग किस तरीके से शेल्टर में रहा करते थे, किस तरीके से वो अपने घर को बनाते थे, किस तरीके से हाउस को कंस्ट्रक्ट करते थे. जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी वो किस तरीके से रहते थे. फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ती गई, कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है कंस्ट्रक्शन में, ये भी हम देखेंगे. ठीक है, उसके अलावा कौन कौन से मटेरियल भी नए नए आए हैं, ये भी हम चीज़ यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे अर्ली कंस्ट्रक्शन के बारे में. देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आज कि अर्ली कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता था. ठीक है ना, देखिए बहुत पहले जब स्टोन एज के टाइम पे, ठीक है ना, एंशियंट ह्यूमन एक्टिविटीज वक्त में किस तरीके से काम होता था. देखिए अर्ली कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे मीनिंग हम जो बात कर रहे हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन इज एन एंशियंट ह्यूमन एक्टिविटी, जो कि बहुत पुरानी चलती हुई आ रही है कंस्ट्रक्शन करना. ठीक है, ये बहुत पुराने वक्त से चलती हुई आ रही है. दैट इज वाई when we were discussing about the civil engineering in the first lecture, the first line was it is the oldest branch because it's an ancient human activity. Construction is not the new thing. It is an ancient human activity. People used to do in the Stone Age also. Okay, the construction. Okay, so that's why it is considered as the oldest branch. उसके बाद देखिए, it began with the purely functional need for control environment to moderate the effect of climate. ये जब शुरू हुआ था तो लोग अपनी ज़रूरत की वजह से ही बनाते थे. कोई बिजनेस नहीं था घर बनाना. ठीक है, और वो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के वो चीज़ें करते थे, और ये कोई बिजनेस नहीं था घर बनाना, ये लोग अपनी ज़रूरत की वजह से करते थे, उनकी नीड थी वो घर. ठीक है, दैट्स वाई दे हैव कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस. ओके, जैसे कि बारिश है, धूप है, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो शेल्टर एक तरीके से बनाते थे. ठीक है ना, एक तरीके से अलग अलग जो मटेरियल उनके पास अवेलेबल होते थे उसका कैसे भी यूज़ करके वो शेल्टर बनाते थे और वहाँ पे रहते थे. ठीक है, human adapted cave shelter to protect themselves of weather and harsh environment and use tree trunks to cross rivers, demonstrating the ancient age of civil engineering. जो पहले के लोग हुआ करते थे वो केव जो होती थी उन्हें अपना शेल्टर बना लेते थे. बारिश से बचना है, धूप से बचना है, तो केव जो होती थी उन्हें अपना शेल्टर बना लेते थे. और उनको अगर रिवर को क्रॉस करना है
एक रिवर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, फॉर एग्जांपल सपोज इस तरीके से कोई अगर रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है ना, सपोज यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है, तो क्या करते थे वो लोग, इस तरीके से ट्री का जो ट्रंक है ना, जो ट्रीज को काट के उसका जो ट्रंक निकालते थे, उस पर इस तरीके से बिछा लेते थे, इस तरीके से उसको बना लेते थे। तब क्या होगा, ये रिवर इधर फ्लो हो रही है और ये ट्री का ट्रंक वो रिवर के अक्रॉस इस तरीके से रख देते थे, ताकि वो आसानी से उस रिवर को क्रॉस कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो काफ़ी लोग इसमें अलग अलग जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल को यूज़ करके करते थे, क्योंकि उस वक्त में ना कंक्रीट था, ना सीमेंट था, ना सैंड था, ठीक है ना, इस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का ही इस्तेमाल करके अपनी नीड्स को फुलफिल किया करते थे। देखिए एक ये जो एग्जाम्पल दिख रहा है भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, एमपी में है, ठीक है। इस तरीके से ये इसकी इमेज आपको दिख रही है, किस तरीके से लोग यहाँ पे रहा करते थे, इस तरीके से केव शेल्टर्स में वो रहा करते थे। It exhibits the earliest trace of human life in India and evidence of Stone Age starting at the site. Some of the shelters were inhabited more than 10,000, 100,000 years ago. देखिए यहाँ पे एक तरीके का देखिए ये दिखाता है कि किस तरीके से स्टोन एज में लोग रहा करते थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अर्ली कंस्ट्रक्शन तो आपको समझ गया क्या होता था। अब देखते हैं हम कि हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन की कैसी रही है। हिस्ट्री के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किस तरीके से एजेस में हमने इसको डिवाइड किए हैं। सबसे पहला होता है नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन होता है, सबसे पुराना अगर है तो नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन हम इसको मानते हैं। उसके बाद एक कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है। उसके बाद एक आयरन एज कंस्ट्रक्शन होता था, ठीक है। उसके बाद एक मेडिवल कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। ये भी हम देखेंगे कि 17th और 18th सेंचुरी में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन में डेवलपमेंट हुआ। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन इन मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन ये क्या होता था और इतना पुराना क्यों है। सी नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन सबसे पुराना है बिकॉज ये जो पीरियड अंदाज़ा जो लगाया जाता है एक अप्रोक्सीमेट, जो लोग सोचते हैं कि ये कब होगा, तो ये तकरीबन 9000 टू 5000 BC, ठीक है। नियोलिथिक ऑल्सो नोन एज द ओल्ड स्टोन एज was a time period roughly from 9000 BC to 5000 BC। यहाँ पे BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट, जिसे अब CE भी बोला जाता है, कॉमन एरा, ठीक है। तो न्यूलिथिक कंस्ट्रक्शन सबसे पुराना इसलिए है। बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल देखिए कौन सा इसमें वो लोगों ने यूज़ किए थे न्यूलिथिक में। उनके पास कंक्रीट वगैरह नहीं था, अवेलेबल क्या होती थी चीज़ें, स्टोन होती थी, हड्डियाँ होती थी, जानवरों की हड्डियाँ होती थी, और लकड़ी। तो ये सारी चीज़ें तो बेसिक चलती हुई आ रही है। ब्रिक्स देखिए उस वक्त नहीं होती थी, इसलिए स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिक्स तो नई टेक्नोलॉजी में आती है। तो जो स्टोन है, जो कि अवेलेबल है स्टोन, उसका यूज़ किया जाता था। उसके अलावा जानवरों की हड्डियाँ जैसे बोन्स दिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा वुड जो कि नॉर्मली अवेलेबल था उस वक्त। उसके बाद अब वो लोग के पास मटेरियल तो आ गया। देखिए न्यूलिथिक कंस्ट्रक्शन में मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, स्टोन यूज़ हो रहे हैं, बोन्स यूज़ हो रहे हैं, वुड्स यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इन मटेरियल का यूज़ कैसा करेंगे, तो वो लोगों ने जो टूल्स का इस्तेमाल किए, अगर उस स्टोन को काटना है, स्टोन को भी थोड़ा सा फिनिशिंग देना है, तो जो टूल्स का यूज़ करते थे, स्टोन एक्स विथ वुडन हैंडल। ये देखिए ये इस तरीके से, ये स्टोन एक्स हो गया, वुडन हैंडल है इसका, इस तरीके से इस तरीके का टूल यूज़ करते थे, ठीक है। इसके अलावा बोन हैमर, चीजल मेड ऑफ स्टोन, इस तरीके से देखिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है वो लोग टूल्स यूज़ करते थे। देखिए बोन हैमर इस तरीके से, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से वो लोग यूज़ करते थे। कि स्टोन लगा हुआ है, ये स्टोन है, पूरा स्टोन का है, फिर स्टोन वुड इस तरीके से जो पत्थर थे, जो स्टोन्स थे, उसका यूज़ करते थे वो लोग, इसका टूल्स जो कि काटने वगैरह के लिए, मटेरियल को काटने के लिए, ठीक है। अब आपके सामने दो इमेज दिख रही है। सबसे पहले ये जो इमेज देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिट हाउस, एक तरीके का पिट हाउस देखिए अंदर, ठीक है।
ये देखिए वो लोगों ने क्या किए, एक पिट हाउस बनाया है, अंदर आप वो लोग रहते थे, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पिट हाउस टाइप ड्वेलिंग मेड विद अ मैन मोथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये हड्डियों से बना है पूरा, ठीक है। इस तरीके से वो बनाते थे। और ये जो नियोलिथिक टूल्स है जिसका इस्तेमाल क्यों करते थे, ये इसको फिनिशिंग देने के लिए, जो भी मटेरियल उसको काटना, उसको छीलना, ठीक है ना, उसको फिनिशिंग देना, दैट्स व्हाई दे यूज दिस टूल्स, ओके। These are the tools and this is the one kind of a construction, okay. So this is all about the Neolithic construction. Let's move to the next slide. Neolithic construction में मैं एक और चीज आपको दिखा देते हैं यहाँ से। देखिए एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। For example, the first bridge made by human were probably just wooden logs placed across a stream or later timber track. जैसे कि हमने जब भी डिस्कस किए कि जो लकड़ी के जो ट्री के ट्रंक्स होते थे उसका यूज करते थे। अब ये तो नियोलिथिक में यूज नहीं किए हैं, कि जस्ट एग्जांपल है। तो जो पहला ब्रिज बना होगा, ठीक है, probably the first bridge would be the wooden bridge, ओके। वो कंक्रीट का तो बना नहीं होगा, इस तरीके से वुडन ब्रिज बना होगा। ये जो है ये नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन में नहीं है, जस्ट एक इमेज है आपको बताने के लिए। ये नियोलिथिक में जैसे मैंने आपको बताया रिवर को क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक ट्री का ट्रंक यूज किया जाता था। ये जस्ट एक इमेज है, ये मॉडर्न इमेज लग रही है, ये उसकी इमेज नहीं है, ठीक है। एक तरीका नियोलिथिक रिकंस्ट्रक्शन किया गया है नियोलिथिक विलेज का, किस तरीके से होता होगा। उसके अलावा ये चीज़, हाँ ये चीज़ है जो कि बिल्कुल इसको जस्टिफाई करेगी नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन को। नियोलिथिक बिल्डिंग इन सकारा ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपको एक तरीके का पेट दिख रहा है। इस तरीके से पेट किया जाता था और उसके सराउंडिंग में स्टोन से कवर कर दिया जाता, ताकि ये ज़मीन इसमें, ये जो अर्थ है वो इसमें ढह ना जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा पत्थरों से इसको कवर किया जाता था और यहाँ पे लोग रहा करते थे, इसको ढक लिया करते थे, इसको कवर कर लिया करते थे। इस तरीके से देखिए पिट दिख रहा है, पिट दिख रहा है और ये स्टोन इस तरीके से लगाए गए। स्टोन उस वक्त भी अवेलेबल थे, अभी भी अवेलेबल है, स्टोन में नहीं है कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वुड पहले भी अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है, इसलिए स्टोन और वुड का पहले बहुत यूज हुआ है नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन। इस तरीके से घर बनाने के लिए इस तरीके से पिट, एक तरीके का गड्ढा एक्सकीवेट करते थे, एक पिट बनाते थे, ठीक है ना, होल बना के इसमें रहा करते थे और सराउंडिंग उसके जो कवर कर देते थे वो इस तरीके से पत्थरों से कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, इन एडिशन टू लिविंग इन केव्स एंड रॉक शेल्टर, यानी कि केव्स में रहने के अलावा या रॉक शेल्टर में रहने के अलावा, द फर्स्ट बिल्डिंग सैंपल first building was simple shelter, tents, and huts, sometimes built as a pit house meant to suit the basic needs of protection from the elements or and sometimes for safety. इसका मतलब ये है कि केव्स और शेल्टर के अलावा, स्ट्रॉक शेल्टर के अलावा, एक बहुत सिंपल टेक्निक होती थी, इस तरीके से पेट बना के उसमें रहा करते थे, इस तरीके से स्टोन से कवर करते थे और ये पेट को बाद में कोई भी ट्री के ट्रंक से या इस तरीके से वो लोग जो भी मटेरियल अवेलेबल होता था उसे कवर कर देते थे, ठीक है। नियोलिथिक कंस्ट्रक्शन के बारे में आपने देखे, अब आगे देखते हैं हम कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज कंस्ट्रक्शन क्या था। देखिए कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज नियोलिथिक के बाद का माना जाता है पीरियड, और जो कॉपर एज है उसे माना जाता है कि वो ब्रॉन्ज एज के पहले था। ये सब आपने पढ़े होंगे पहले भी हिस्ट्री में, ठीक है। तो कॉपर एज जो है इज द अर्ली पार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज, ठीक है, ब्रॉन्ज एज का पहला वाला पार्ट है। अब जो इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स को कॉपर एज ब्रॉन्ज एज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें बिल्डिंग मटेरियल जो है वो कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज किया गया है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज इज मेड व्हेन टीन इज एडेड टू कॉपर एंड ब्रास, ठीक है ना। ब्रॉन्ज कैसा बनाया था, जब टीन को ऐड किया जाता था कॉपर और ब्रास में, ये आप पढ़ चुके होंगे पहले भी, ठीक है। टूल्स देखिए यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज किया जा रहा है। Copper and bronze were used for the same types of tools such as axes and chisel, but the new tools are less brittle, more durable material and cuts better. कॉपर और ब्रॉन्ज को ही यूज किया जा रहा है कॉपर और ब्रॉन्ज को काटने के लिए, ठीक है। ये इसमें होता था, ठीक है। इस तरीके से देखिए, थोड़ा मैं इमेज को इस तरीके से, हाँ देखिए आप, ब्रॉन्ज सॉ फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अक्रोत्री, ठीक है। अक्रोत्री के एक साइट है वहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शायद इसे निकाला होगा। इस तरीके से देखिए कॉपर एक ब्रॉन्ज का सॉ है, ठीक है, ब्रॉन्ज सॉ की तरह है ये। इसके अलावा देखिए टूल्स में भी वही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। देखिए किस तरीके से शार्प एज के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, तो ये कॉपर और ब्रॉन्ज एज में होता था, ठीक है। उसके अलावा
आयरन एज कंस्ट्रक्शन आई जिसमें आयरन को यूज किया गया काफ़ी। ये जो एज थी ये थोड़ा सा जल्दी थी, मतलब कॉमन एरा की। द आयरन एज इज अ कल्चरल पीरियड रफली फ्रॉम 1200 BC to 50 BC with the widespread use of iron for tools and weapons। अब इसके बाद आयरन को यूज किया गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब इसमें भी 3 पार्ट में होता था ये। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इन एन एंशियंट, ठीक है, उसको देखिए इस तरीके से डिवाइड किया हमने आयरन एज को, कंस्ट्रक्शन को। सबसे पहला देखिए कंस्ट्रक्शन इन एंशियंट मेसोपोटामिया, ठीक है ना, एंशियंट मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में हम देखेंगे कि एंशियंट मेसोपोटामिया में जो कंट्रीज़ है जैसे कि टर्की है, सीरिया है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, मेसोपोटामिया में जो एंशियंट मेसोपोटामिया है, जो आप बोल सकते हो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है वो हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इन एंशियंट इजिप्ट, ये आपने सुने होंगे, इजिप्ट में जो अलग अलग आप देखते हैं, ठीक है, पिरामिड्स वगैरह आप लोग जो देखते थे। इसके अलावा रोमन कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा एडवांस रहा है, तो रोमन कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। We could have included the parts such as ancient Chinese or ancient Greek, but it would have increased the lecture time. That's why we have included these 3 things only. Okay, so we will see this one by one. आयरन एज में ये जो कंस्ट्रक्शन, जो टेक्नोलॉजी इन लोगों ने अडॉप्ट किया, हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन इन एंशियंट मेसोपोटामिया। जैसे मैंने आपको बताया ये मिडिल ईस्ट के एरिया को कवर किया है इसने, ठीक है। इसमें देखिए द अर्लीस्ट लार्ज स्केल बिल्डिंग फॉर विच एविडेंस सर्वाइव हैज बीन फाउंड इन एंशियंट मेसोपोटामिया। जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी वो एंशियंट मेसोपोटामिया में जो फाउंड की गई थी। ठीक है, अब इसमें देखिए बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज हो रहे हैं। पहले हमने देखे स्टोन हुआ, वुड हुआ जो कि अवेलेबल था। अब क्या होता है, मड ब्रिक, जो कि मड से बनाई जाती थी ब्रिक्स, उसका यूज किया गया। वुडन मोल्ड का यूज करते थे शेप देने के लिए। बाय 3500 BC फायर्ड ब्रिक्स केम इनटू, देखिए कब आई फायर्ड ब्रिक्स, जो जला के जो ब्रिक बनाते थे। 3500 BC, कितनी पुरानी हो गई है ब्रिक्स भी, ठीक है, फायर्ड जो उसको जला के बनाते थे। ग्लेज्ड ब्रिक हैव बीन फाउंड इन द 13th सेंचुरी। जो ग्लेज्ड ब्रिक थी वो 13th सेंचुरी में बनाई गई, लेकिन जो फायर ब्रिक्स थी वो काफ़ी पहले बनाई गई थी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक जिगुराट ऑफ ओर, ये देखिए इस तरीके से एक कंस्ट्रक्शन की देखिए किस तरीके से दिख रहा है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ स्टार गेट 575 BC में देखिए इस तरीके से बनाया गया था। ठीक है, स्ट्रक्चर को आप देख रहे होंगे, तो ये देखिए ब्रिक्स से बनाई गई है, मड ब्रिक्स। ठीक है, देखिए इसको ये स्ट्रक्चर में कलर भी एक तरीके से किया गया है, और इसमें देखिए इस तरीके से इमेजेस भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन इन एंशियंट इजिप्ट। ये तो आपने काफ़ी सुने भी है इसके बारे में। इजिप्ट में जो कंस्ट्रक्शन है आप हमेशा देखते हुए इसको कहीं ना कहीं आपने बुक्स वगैरह में देखते हुए आए हैं। एज अपोज टू द कल्चर्स ऑफ एंशियंट मेसोपोटामिया, ध्यान से सुनिए, अपोज किया गया एंशियंट मेसोपोटामिया को, विच बिल्ट इन ब्रिक। द फेरोन्स ऑफ इजिप्ट बिल्ट ह्यूज स्ट्रक्चर इन स्टोन्स। द फेरोन का नाम काफ़ी लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, जो फेरोन था उसने इजिप्ट में बिल्ड किया बहुत बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया स्टोन के बड़े बड़े स्ट्रक्चर, काफ़ी लोगों के यूज़ किया गया, इसमें लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह यूज़ किया गया था, और इस तरीके से बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए गए। ठीक है, द पिरामिड्स आर चीफली इम्प्रेसिव फॉर देयर enormous size and staggering manpower that must have been employed in their construction। ठीक है ना, उसका जो साइज की वजह से था वो उसे बहुत इम्प्रेसिव माना गया है, लेकिन उसमें जो मैन पावर यूज़ किया गया है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा मैन पावर, तब जाके वो पिरामिड बना है इतना बड़ा। तो ये जो फिरौन था उसने इसे इम्प्लीमेंट करवाया था। ठीक है, इजिप्ट में इस तरह बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे। इजिप्ट की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी तो आज भी लोग इसकी इमेजेस वगैरह रखना पसंद करते हैं। ठीक है, अब जो स्टोन थे इसको काटने के लिए देखिए जो यूज़ किया गया था वो आयरन मटेरियल, आयरन के जो टूल्स थे उसको यूज़ किया गया था। ठीक है, इस तरीके से जस्ट एक इमेज है किस तरीके से बनाया गया होगा। देखिए यहाँ पे करनाक में एक हिप्पोस्टाइल हॉल है, ठीक है ना, हिप्पोस्टाइल हॉल की एक इमेज है। अ कॉपी ऑफ अ वॉल पेंटिंग इन द टॉम ऑफ रिक्मायर बिटवीन 1550 एंड 1292 BC। ठीक है, देखिए बहुत पुरानी इमेज है।
तरीके के उसको कॉपी किया गया है। ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, बिल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ किया गया है, सन बेक्ड मड ब्रिक का यूज़ किया गया और सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है स्टोन का। मैसिव मशीनरी ब्लॉक्स, बड़े बड़े स्टोन के ब्लॉक्स इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, इजिप्ट की कंस्ट्रक्शन की बात हो। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं रोमन कंस्ट्रक्शन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव रहा है रोमन कंस्ट्रक्शन। इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस कल्चर्स एन enormous amount is known about the Roman building construction. सबसे ज़्यादा फेमस जो रहा है, वन ऑफ द फेमस आफ्टर इजिप्ट, दैट इज रोमन कंस्ट्रक्शन। रोमन रोड्स इंक्लूडेड पेव्ड रोड, समटाइम्स सपोर्टेड ऑन राफ्ट और पाइल फाउंडेशन एंड ब्रिजेस। देखिए, अभी आप लोग जब सिविल वाले जो है वो जब राफ्ट पाइल फाउंडेशन ये सब पढ़ेंगे डिटेल में, बड़े बड़े फाउंडेशन होते हैं, तो ये रोमन एजेस में इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी। आज भी रोमन कंस्ट्रक्शन को एक तरीके का केस स्टडी मान के लोग उसका बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल देखिए, हाइड्रोलिक लाइम मोटर कॉल्ड रोमन सीमेंट। अब यहाँ पे सीमेंट का एक तरीके का आ गया है। जो लाइम मोटर था, हाइड्रोलिक लाइम, उसको एज अ सीमेंट के तौर पे यूज़ किया गया। ब्रिक का यूज़ किया गया, स्टोन का यूज़ किया गया, वुडन शटरिंग का यूज़ किया गया। यहाँ तक बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी थी, एक तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी रही है रोमन। टूल्स देखिए क्या है, द इन्वेंशन ऑफ द वाटर व्हील sawmills were the Romans. The Romans also began using glass for architectural purpose. देखिए ग्लासेस आज भी लोग यूज़ करते हैं, रोमन ने उस वक्त पे यूज़ की थी। The Romans developed sophisticated timber cranes. ये देखिए इस तरीके का टिम्बर क्रेन इस तरीके का बनाया गया है। ठीक है, sophisticated timber crane allowing them to lift considerable weight to greatest height। अब इसमें क्या होता था, इस तरीके से कोई भी स्टोन है कुछ, उसको अटका के इस तरीके का उसको लिफ्ट करके दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता था। देखिए क्या आज की तारीख में जो क्रेन यूज़ करते हैं वो वुडन क्रेन यूज़ किए थे लोगों ने। ठीक है, तो इसलिए रोमन टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस मानते हैं आज। में देखिए एक तरीके का रोमन के जो ट्रेडमिल क्रेन है जो कि स्टोन को लिफ्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। देखिए इस तरीके का द पैंथेन इन रोम लुकिंग अप इनसाइड द कंक्रीट डोम। देखिए कितना बेहतरीन डोम है। अब ये जो टूल्स है देखिए, आज आपको लग रहा होगा ये टूल तो मॉडर्न के ज़माने के, लेकिन ये रोमन ज़माने के। द हैंड प्लेन डेवलप्ड इन द आयरन एज was known to be used by the Romans। देखिए इस तरीके से रोमन इससे भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, ये था रोमन टेक्नोलॉजी के बारे में। आप देखते हैं आगे मिडीवल कंस्ट्रक्शन देखते हैं अब जब सेंचुरी जब ये अब कॉमन एरा के बाद की बात हो रही है। ठीक है, कॉमन एरा के बाद की बात हो रही है। अब हम थोड़ा सा कॉमन एरा में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए मिडिल एजेस ऑफ यूरोपियन स्पैन फ्रॉम द 5th to 15th, याद रखिए 5वीं सेंचुरी से 15वीं सेंचुरी तक के ईडी से एनो डोमिनी भी कहा जाता है। फ्रॉम द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर टू द रेनेसेंस एंड डिवाइडेड इनटू प्री रोमन्स्क्यू एंड रोमन्स्क्यू पीरियड। जब रोमन एम्पायर अलग अलग इसमें डिवाइड हो गया, रोमन एम्पायर बहुत बड़ा था, जब वो डिवाइड होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, उसके बाद अलग अलग जगह पे रोमन्स जो है वो अलग अलग देशों में अलग अलग, ठीक है ना, आप बोल सकते हो उसे अलग अलग उन्होंने पार्ट्स बना लिए देश दुनिया में। तो अलग अलग जगह पे कोई वेस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया, ठीक है ना, कोई ईस्टर्न रोमन एम्पायर हो गया, इस तरीके से अलग अलग इसमें डिवाइड हो गए। उस वक्त के दौर की बात है, 5th to 15th सेंचुरी। काफ़ी चीज़ें इसमें हुई है। जो बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होता था, ब्रिक होता था, टिम्बर होता था, लाइम मोर्टर। लाइम मोर्टर एक तरीके का सीमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया गया है, कॉन्क्रीट सीमेंट। डिज़ाइन देखिए किस तरीके का होता है। देयर वर नो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ऑन बिल्डिंग ऑफ द मिडिल एजेस। ऐसी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है, बट फिर भी हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। मास्टर क्राफ्टमैन ट्रांसफर्ड देयर नॉलेज थ्रू अप्रेंटिसशिप एंड फ्रॉम फादर टू सन। ठीक है ना, जो क्राफ्टमैन होते थे वो अपने नॉलेज को अपने बच्चों को, जो उनकी जनरेशन होती थी, उसमें पास करते जाते थे। मॉडल्स वर यूज फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर एंड कुड बी बिल्ड टू लार्ज स्केल। उस वक्त मॉडल बना लिया जाता, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल एक तरीके का ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, चलना आ गए हम थोड़ा सा, एक तरीके का आपको ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका एक छोटा सा पहले मॉडल बना दिया जाता था, उसके बाद इसको एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट किया जाता था। देखिए एक तरीका ड्राइंग ऑफ अ फ्लाइंग बटरेस एट रीम्स। ठीक है ना, ये देखिए इस तरीके से इसका बेहतरीन स्ट्रक्चर है। द डोम ऑफ सेंट्रा मारिया डेल यूरोप फ्रांस में है।
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे आते हैं, कंस्ट्रक्शन इन 17th एंड 18th सेंचुरी। जब एक तरह का मॉडर्न साइंस जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ, मॉडर्न साइंस जब बर्थ हुई मॉडर्न साइंस की, उस वक्त का पीरियड है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा चेंज हुई है यहाँ पे चीज़ें। द 17th century saw the birth of modern science which would have profound effect on building construction in the centuries to come। ये जो चीज़ें हुई है काफ़ी अब तक उसका एक इफेक्ट है हम पर, ठीक है। द मेजर ब्रेक थ्रू व towards the end of the century when the architect engineer began to use experimental science to inform in the form of their buildings। 17th century structures relied strongly on experience, rule of thumb and use of scale model। यहाँ पे अब क्या हुआ, एक तरीके का मॉडल्स बनने लगे, एक तरीके का जो स्ट्रक्चर में जो नई नई चीज़ें डेवलप, लोग एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किए कि उसका टेक्सचर चेंज करना, उसका एलिवेशन को बेहतरीन करना। इस तरीके से वो लोगों ने स्टार्ट किया। और जो मटेरियल यूज़ किए, ब्रिक, टिम्बर, ग्लास, आयरन, ठीक है ना। और जो टूल्स यूज़ किए, उस वक्त क्रेन्स आ चुका था। क्रेन्स मतलब जो ही वुडन क्रेन्स वगैरह बना के यूज़ करते थे। स्कैप होल्डिंग क्या होती है, आप देखते होंगे बिल्डिंग्स के बाजू में जो वुड का स्ट्रक्चर होता है लकड़ी का, जिसके ऊपर जो लेबर्स है वो खड़े होते हैं और पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, उसको बोलते हैं स्कैप होल्डिंग। तो स्कैप होल्डिंग में बन गई थी। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ पुलीज allowed to comparatively large load to be lifted and long ramps were used to haul loads up to the upper part of the building। रैम्स बनना स्टार्ट हो गए। इसके अलावा बड़ी बड़ी पुलिस बनना स्टार्ट हो गई। पुलिस जो कि बड़े बड़े जो हैवी मटेरियल्स को लिफ्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी 17th और 18th सेंचुरी में, ठीक है। इसके अब आगे हम देखते हैं। उसके अलावा देखिए 18th सेंचुरी सॉ द डेवलपमेंट ऑफ many the ideas that had been born in the late 17th century, ठीक है। आर्किटेक्ट इंजीनियर बिकेम इंक्रीजिंगली प्रोफेशनलाइज। अब क्या हुआ, पहले तो लोग ऐसे ही करते थे, लेकिन अब आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए। इस काम के तो पैसे पहले भी लेते ही थे इसके पहले भी, लेकिन अब वो इसको और अच्छे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश में लग गए। The birth of industrialization revolution saw an increase in the size of cities, increase in the pace and quantity of construction। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ उस वक्त, तो कंस्ट्रक्शन की जो डिमांड है वो भी बढ़ गई, ठीक है ना। तो लोग ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई जा रही थी, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल देखिए क्या है, द मेजर ब्रेक थ्रू इन दिस पीरियड वर द यूज ऑफ आयरन। यहाँ पे कास्ट और रॉट आयरन दोनों यूज किया गया। Experiments were made mixing lime with the other material to provide hydraulic motor। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गए, जैसे मैंने बोला नए नए मटेरियलों की खोज शुरू हो गई कि और क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो सीमेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है लाइम का। तो लाइम हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल रहा है कंस्ट्रक्शन के, ठीक है ना। लाइम की जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, जो बांध के रखने की उसकी ताकत है दूसरे मटेरियल की, जैसे कि सैंड, आप सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स करो और एग्रीगेट के साथ यूज़ करो। एग्रीगेट मतलब जो गिट्टी आप जिसको नॉर्मल भाषा में समझते हो, इसको जब आप यूज़ करो तो सीमेंट की ताकत क्या है कि सीमेंट इन सारे मटेरियल्स को कंबाइन करता है। और सीमेंट इनको कंबाइन इसलिए कर पाता है क्योंकि लाइम है उसके अंदर। सीमेंट के अंदर लाइम का कंटेंट होने की वजह से वो इन मटेरियल को कंबाइन कर पाता है, इसलिए ये मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। और अभी 17th और 18th सेंचुरी ब्रिक प्रोडक्शन इटसेल्फ चेंज रिलेटिव। अब ब्रिक का जो प्रोडक्शन है, अब इसमें क्या हो गया, नई नई ब्रिक्स आ गई, नया नया उसका तरीका चेंज हो गया कंस्ट्रक्शन का भी। अब इसके अलावा देखिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी, आयरन कॉलम यूज हुई, जैसे स्टील स्ट्रक्चर, जो कि दूसरे कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा फेमस है स्टील के कंस्ट्रक्शन। यानी कि कॉलम जो बीम्स है वो स्टील के होते थे। अभी जो आप दूसरी कंट्रीज में देखते हो, यूएस में भी देखते हो, बड़ी बड़े जो स्ट्रक्चर्स है वो स्टील के। तो आयरन कॉलम 17th और 18th सेंचुरी में यूज़ करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। उसके बाद सबसे जो वन ऑफ द ग्लोरियस जो रहा है सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से भी सेंचुरीज को जाना जाता है। 19th सेंचुरी में बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, जिसका एक इमेज आप देखो यहाँ पे, बस वही इमेजिन कीजिए कि 19th सेंचुरी में, जब उस वक्त भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, आज तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, बड़े बड़े टावर क्रेन आ गए, बहुत बड़े बड़े क्रेन्स आ गए, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स आ गए जो कि अब फटाफट काम खत्म करते हैं। अब आप इस इमेज को देख के इमेजिन कीजिए कि 19th सेंचुरी में किस तरीके से बनाया गया। ये जो इमेज है ये विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था 19th सेंचुरी में, वीटी स्टेशन, अब जिसका नाम
CST हो गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया। ये लेट 19 सेंचुरी में बनाया गया एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है ब्रिटिश के दौर में। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए 19 सेंचुरी में। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज मैनिफेस्टेड इन द न्यू काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन सच एज रेलवे, कैनाल एंड मैकेडम रोड। अब यहाँ पे रेलवे का इंक्लूड, यहाँ पे रेलवे इंक्लूड हो गई है, कैनाल्स आ गए हैं। मैकेडम रोड एक तरीके का रोड होता है, ठीक है ना, जिसमें एग्रीगेट के साथ हम विटामिन को यूज़ करते थे, मैकेडम रोड है। ये नए नए टेक्नोलॉजीज अब 19 सेंचुरी में आ गई, तो इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनना भी स्टार्ट हो गए। न्यू कंस्ट्रक्शन डिवाइसेस इंक्लूड स्टीम इंजन, देखिए रेलवे आया, स्टीम इंजन आया, उसके बाद मशीन टूल, एक्सप्लोजिव यूज़ करना स्टार्ट हुआ, सर्वे के लिए ऑप्टिकल सर्वेइंग यूज़ करना स्टार्ट हुआ, इंस्ट्रूमेंट आए सर्वे करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए बिल्डिंग मटेरियल स्टील was a mass produced from the mid 19th century. It was used in the form of I-beam and reinforced concrete. स्टील का यूज़ करना स्टार्ट हुआ, ग्लास पेन्स का, प्लम्बिंग वर्क स्टार्ट हुए, बिल्डिंग के कोड्स बनाए गए। जब आप सिविल वाले जो है, जब आप सेकेंड थर्ड ईयर में आओगे तो आप पढ़ोगे IS कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है ना। इंडियन स्टैंडर्ड कोड बनाए गए 19 सेंचुरी में, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडिया में होता है वो उसी कोड के हिसाब से होगा। अब उस कोड का मतलब क्या है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो उस पर कितना लोड आना चाहिए, क्या एक अगर बिल्डिंग का साइज़ ये है तो इतना लोड आना चाहिए, अगर एक कॉलम का साइज़ ये है तो उसमें कितने बार आना चाहिए, ये सब कुछ उस कोड में लिखा है। तो ये कोड डेवलप किया गया 19 सेंचुरी में। ठीक है, इसके अलावा आगे देखते हैं। अब मॉडर्न टाइम्स, अब इसके बारे में हम क्या ही बोले, ये तो टेक्नोलॉजीज बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, इतनी जो मॉडर्न टाइम्स में जो कंस्ट्रक्शन है वो एक अलग लेवल पे, और इसके आगे वो अलग ही लेवल पे होगा। इसका, इस स्लाइड्स का, इस लेक्चर का एक मीनिंग ये है कि आप देखिए कि टाइम के साथ साथ चीज़ें कितनी चेंज होती है, इसमें इम्प्रूवमेंट किस लेवल का आ गया है, कॉम्पिटिशन किस लेवल का आ गया है। आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं, आपके आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनमें कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, जो हर चीज़ में कंपटीशन बढ़ रहा है, जो कि आपको दिख रहा है। तो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में भी ये कंपटीशन बढ़ गया है। अब देखिए यहाँ पे 20वीं सेंचुरी पे अब हम आ गए हैं, जो कि हम लोग की ही सेंचुरी है, मतलब हम लोग है इसमें। विद द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, एलिवेटर्स, क्रेन्स मेड हाई राइज बिल्डिंग एंड स्काई स्क्रैपर पॉसिबल। हाई राइज बिल्डिंग और स्काई स्क्रैपर इसे बोला जाता है, इस तरीके की बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर भी बोला जाता है। while heavy equipments and power tool decrease the workforce needed। बड़े बड़े स्ट्रक्चर आ गए जिसकी वजह से क्या हो गया, थोड़ा सा लेबर की डिमांड भी कम हुई है, लेकिन लेबर्स अपनी जगह हमेशा रहेंगे। इस तरीके से देखिए बड़े बड़े टावर क्रेन्स यूज़ करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा का एक एग्जाम्पल है, जो कि एक बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ट्रेड यूनियंस वो फॉर्म टू प्रोटेक्ट कंस्ट्रक्शन वर्कर इंटरेस्ट। अब जो वर्कर्स आ गए, ये 19 सेंचुरी में हुआ था एक्चुअली, अर्ली 20th आप इसको बोल सकते हो, अर्ली 20th बोल सकते हैं। जो वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनाना स्टार्ट की, ठीक है ना। इन द एंड ऑफ 20th सेंचुरी, इकोलॉजी, एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैव बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब इसमें क्या हो गया, आज की तारीख में लोग हमेशा बात करते हैं कि जो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे चीज़ें, ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाए, इकोलॉजी पे ध्यान दिया जाए, एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान दिया जाए, ये सब चीज़ें डिस्कस होना स्टार्ट हो गई है। और कंस्ट्रक्शन जो टेक्नोलॉजी है वो आज एक अलग लेवल पे चल रही है। देखिए एक तरीके के स्ट्रक्चर देखिए एक बना रहे हैं, देखिए इस तरीके से काम करें। स्ट्रक्चरल वर्कर ऑन द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है 20th सेंचुरी के। ठीक है, thank you so much for listening this, and in next lecture we will try to cover the next topic from unit 1. Thank you so much.